Bismillahirrahmanirrahim. Respected colleagues, faculty, researchers, students, and value policy experts, Assalamu alaikum. On behalf of the worthy Vice Chancellor, PIDE, Dr. Nadeem Javed, and whole PIDE community, we welcome you all to today's seminar titled PIDE and PBS Deliberations on Data for Policy Research. At PIDE, we believe that strong data is the backbone of sound public policy. Without credible numbers, our discussion remains abstract, our planning remains guesswork, and our reforms struggle to take root. Pakistan today stands at a critical juncture with major national datasets being generated and released, such as Population Census 2023, Agriculture Census 2023, Economic Census 2023, and the latest Labor Force Survey 2024-25. These datasets hold immense potential to shape evidence-based decision-making, guide resource allocations, and support research that can truly inform development priorities. Today's session provides an invaluable opportunity to engage directly with Pakistan Bureau of Statistics, the custodian of national dataset, and to better understand the methodologies, strengths, limitations, and policy implications of these major statistical exercises. Our goal is to foster deeper collaboration between data producers and data users so that Pakistan's data can translate into actionable insights and impactful policy outcomes. We are honored and privileged to have with us an eminent professional and leader in the field of national statistics, whose work has been central to Pakistan's recent data initiatives. Again, on the behalf of the worthy Vice Chancellor and PIDE community, I welcome Dr. Naeem Muzaffar, who is the Chief Statistician of the Pakistan Bureau of Statistics and a leading authority in national statistical systems, census operations, and data governance in Pakistan. With extensive experience in designing and managing large-scale statistical projects, he has played a pivotal role in overseeing major national datasets, including Population Census 2023, Agriculture Census 2023, and Economic Census 2023. Under his leadership, PBS has made significant successes towards modernizing data collection through digital tools, improving data reliability, and enhancing transparency, accessibility for researchers and policymakers. Thank you once again for joining us. We look forward to a productive and encouraging discussion. And with this, I invite Dr. Saab for his talk. Sir. Assalamu alaikum and a very good morning. First of all, I am so thankful for such a generous introduction. I'm just a humble person, a worker. गालिब का मिसरा है, ज़बाने गैर से क्या शर आरजू करते. Since I don't see anyone who cannot comprehend Urdu, so I am switching to Urdu because I feel more comfortable. जो इतने सालों में सिर्फ जो यही हुआ है कि मैंने ट्रांसलेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है. सोचता मैं उर्दू में ही हूँ, फिर उसको जल्दी से अंग्रेजी में बदल लेता हूँ. क्या ज़रूरत है उसकी. फ़हीम साहब ने आज जो मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, इनिशियली आई थॉट टू मेक अ प्रेजेंटेशन. तो मैंने आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग द प्रेजेंटेशन आई मेड फॉर डिलीवरिंग टॉक्स एट सेवरल ओकेजन्स. तो वो सारी इंस्टीट्यूशनल बेसिस था उसका कि पीबीएस ने ये किया, पीबीएस ने वो किया. सो मैं थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो गया. मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसी कोई मज़ेदार बात नहीं है जो मैं पाइड जाके करूं. पाइड आके मुझे बहुत खुशी होती है. कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पाइड, ये दो इदारे हैं जिनको मैं हमेशा से बहुत इज्जत से, बहुत हाई एस्टीम में देखता हूँ. नर्सरी है थिंकर्स की. ये रिसर्चर्स पैदा हुए हैं यहाँ, पॉलिसी मेकर्स पैदा हुए हैं, थिंकर्स पैदा हुए हैं, लीडर्स पैदा हुए हैं, और ये सिलसिला जारी है. आप भी उसी
सिलसिले का एक तसलसल है। मैं गुफ्तगू करूंगा डेटा और पॉलिसी पर, और मेरा कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक्स 101 का होगा। मैं 3 डेटा सेट्स की बात करूंगा, हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस की, इकोनॉमिक सेंसस की, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक सेंसस की, लेबर फोर्स सर्वे की भी मैं बात करूंगा, लेकिन कम। और ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बीइंग इकोनॉमिस्ट जो हमारा ट्रेनिंग का कोर होता है, जो हम हाई स्कूल के बाद, कुछ लोग जो हाई स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पहले पता चल जाता है कि हम सोचने की कोशिश ही डिमांड और सप्लाई में करते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप इन 3 बड़े डेटा सेट्स पे वो सोच कैसे इम्पोज कर सकते हैं। उस हद तक ये टॉप डाउन है, लेकिन जब आप अपनी पॉलिसी की निटी ग्रिटी का सोचते हैं, उसको ऑपरेशनल बनाने का सोचते हैं, किस किस के स्टेक्स हैं उस पॉलिसी में, उसको आइडेंटिफाई करने का सोचते हैं, तो फिर ये अप्रोच थोड़ी बॉटम अप हो जाती है। और आप अगर इसी सोच से आगे चलें तो पीबीएस में खुसूसन और पाकिस्तान के जो डेटा इकोसिस्टम है इसमें आपको वाज़ेह गैप नजर आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप एक टिपिकल इकोनॉमिक्स या सोशल या पब्लिक पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी के स्टूडेंट के तौर पर सिर्फ डेटा से ड्राइव होके आप अपनी रिसर्च करते हैं, तो आपको ये होलिस्टिक पिक्चर नजर नहीं आती। तो आज स्ट्रक्चर टॉक ना रखने का और प्रेजेंटेशंस को ना रखने का मकसद भी यही है कि ये बात अमूमी की जाए और उसी कॉन्टेक्स्ट में की जाए। मैं बात शुरू करता हूं हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस से, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर पता होगा, और फिर मैं अपनी बात को आगे पुश करूंगा। हाउसिंग और पॉपुलेशन सेंसस में आया क्या है आपके पास? आपने सारे लोग गिने हैं, आपने सारे घर जियो टैग किए हैं, आपके पास एज कोहॉर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, आपको ये पता चल गया कि किस एज के कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने जवान, कितने बूढ़े, कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और सिर्फ लोगों के काउंट को देखने की बजाय आप ये देखें कि वो डिमांड को किसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप ये ना सोचना शुरू करें कि इन एज कोहॉर्ट्स की सोशल ज़रूरियात क्या क्या हैं, और फिर आप उनके जो भी सोशल स्टैंडिंग है, एजुकेशन की, हेल्थ की, डिसेबिलिटी की, लिविंग कंडीशन की, उसको देख के आप किसी भी पैमाने को यूज़ करके उनका सोशल स्टेटस निकाल लें। एमपीआई यूज़ कर लें, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यूज़ कर लें, मनी मेट्रिक पॉवर्टी यूज़ कर लें, जो मर्जी कर लें, आपको एक लैंडस्केप आ जाएगा कि इनकी सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन है क्या, ये डिप्राइव्ड कैसे हैं, तो लोग कितने हैं और उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। यहां से आपको क्या पता चलेगा? यहां से आपको डिमांड का पता चलेगा। अच्छा, जब हम थोड़ा सा, मैं डिटोर ले रहा हूं, जब हम सेंसस करना हमने शुरू किया तो उस वक्त ये जहन में था और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से हम पे प्रेशर था कि आप, जैसे जो सेक्रेटरी पावर थे वो कह रहे थे कि यार आप स्कैन कर सकते हैं तो आप लोगों के बिजली के और गैस के बिल मंगवा लें, वो स्कैन कर लें, हमारा सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए। किसी की और फरमाइश थी, कुछ वो डिसेबिलिटी वाले थे, कुछ पावर्टी वाले थे, हर एक की अपनी अपनी फरमाइश थी। हमारी हालत वो थी कि जैसे कोई आदमी एक 2 किलो की थैली में कोई सौदा लेके आ रहा हो और उसमें सारे के सारे लोग कह दें कि नहीं तुम इसमें 8 किलो सौदा लेके आओ, तो थैली को फट ही जाना है। तो हम इसमें थे कि यार हमारी थैली जैसे गई है वो सामान लेके वापस तो आ जाए ना। इनकी फरमाइशों में थैली फट गई तो फिर सेंसस के तो 37 अरब लगते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, अगर वहां नाकाम हो जाए तो फिर नैब होता है।
तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वकील जो हमारी फाइल मना कर देता कि मैं तुम्हारा केस नहीं कर रहा, वो भी 5 लाख लेता है, और जो केस एक्सेप्ट करता है वो तो 1 करोड़ लेता है। तो हम इस खौफ में भी थे कि यार इसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई तो जाएंगे कहाँ। बहरहाल फिर सोचा कि हम किस फरमाइश को इंक्लूड करें, तो हमें समझ में आई कि सबसे मेजर जो गैप है पाकिस्तान की डेटा इकोसिस्टम में, वो रियल साइट का है। आप रिसर्च देख लें, इट इज रिप्लीट विद व्हाट काइंड ऑफ स्टडीज, नॉट आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दैट। पॉवर्टी, मदर एंड चाइल्ड, आउट ऑफ स्कूल, इम्यूनाइजेशन, स्टंटिंग, यही कुछ है साकी मताए फकीर। रियल साइड आपकी फारिग है, कौन कौन सी क्रॉप्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी दुकानें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी वैल्यू चेन्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से क्लस्टर कहाँ कहाँ हैं, आउटपुट गैप कितना है, प्रोडक्टिविटी गैप कितना है, स्किल डिमांड कौन सी है। ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी टीवेट से बात करती है, ना एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बात करती है, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी टीवेट से बात करती है, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट से बात करती है, ना टीवेट लेबर फोर्स सर्वे से बात करता है। ये ये लड़ियां अलग अलग पड़ी हैं, ये चेन नहीं है। उसकी वजह यही है कि आप ऊपर से हम नहीं देख रहे। हम जो बाबू लोग होते हैं सरकार में, उनको एक खत आ जाता है पीएम ऑफिस से कहीं से, वो सारे के सारे लग जाते हैं, चीजें जोड़ते हैं, कुछ कभी बन जाती है कभी, और अक्सर नहीं बनती। हमारी सोच में डिसकंटिन्यूटी है। कमिंग बैक, फिर हमने सोचा कि इसमें हम क्या चीज डाल सकते हैं, तो हमें समझ आई कि हमें स्ट्रक्चर्स का डेटा लेना चाहिए। फिर हमने सोचा कि स्ट्रक्चर्स के डेटा पे स्टैंडर्ड कौन सा डालेंगे, तो फिर हमें समझ आई कि घरों का तो हमने वैसे ही जियो टैग कर लेने, सारे स्ट्रक्चर्स आ जाने। जो चीज़ लाजमी हमने करनी है कि पिजिक को, आइजिक को इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के कोड्स। तो फिर ये समझ में आई कि सारे सोशल सर्विस के इदारे, सारे इकोनॉमिक सर्विस के इदारे, उनके फिजिक कोड्स पे हम जियो टैग करेंगे, तो हमारे पास रियल साइट का कोई फ्रेम आना शुरू होगा। और दिस इज वर्थ एडिंग। ये वो चीज़ है जो हम अपनी थैली के फटने के खौफ के बावजूद इंक्लूड करेंगे। हम बिजली के बिलों को नहीं इंक्लूड करेंगे, बाद में कर सकते हैं। हम गैस के बिलों को नहीं इंक्लूड करेंगे, बाद में कर सकते हैं। जितने भी डेमोग्राफर्स थे उनसे हमने झूठ बोला कि हम सेंसस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वी न्यू व्हाट वी वांटेड टू डू एंड वी डिड इट, एंड दैट इज द रिजल्ट। अब हमारे पास इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक फ्रेम है। अगर हम डेमोग्राफर्स को ये बात बता देते तो वो कहते हैं कि तुम सेंसस को रिस्क में डाल रहे हो, और वो हमारी कमेटी कभी क्वेश्चनर को अप्रूव ही नहीं करती। तो अब इस सेंसस में क्या आ गया आपके पास? एक तरफ आपके पास आ गई है डिमांड की सूरत हाल, सारे एज कोहॉर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, पाकिस्तान, चारों सूबे, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार, यहां तक आ गया। पटवार ऑलमोस्ट टॉकिंग टू यूसी, ऑल्दो नॉट ऑफिशियली, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का स्टेटस सारे पाकिस्तान में यकसा नहीं है। ये डेटा आपको डिमांड के बारे में बताता है कि अगर 5 साल और 1 साल से छोटे बच्चों की डेंसिटी से आपको पता चलेगा कि इम्यूनाइजेशन की जरूरियात कितनी है, आपको इम्यूनाइजेशन के फ्रेमवर्क का पता चलेगा। फर्टाइल एज की जो औरतें हैं उनसे आपको फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर का पता चलेगा। ठीक है, इस सिलसिले को सोचते चले जाएं। 5 से 16 साल तक के लड़के लड़कियां इन स्कूल, आउट ऑफ स्कूल, इससे आपको पता चलेगा कि एजुकेशन की डिमांड कितनी है। आर्टिकल 25 में तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर एक को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने की पाबंद है। अब इसको, इंफॉर्मेशन को आप सामने लेके आए, जो इकोनॉमिक सेंसस जिसमें हमने सोशल और इकोनॉमिक सर्विस के डिलीवरी के इदारों को जो जियो टैग किया है, वो क्या चीज है? वो सिवाय सप्लाई साइड के और कुछ भी नहीं है। अब आप इन दोनों को मिलाना शुरू करेंगे तो आपके सामने सूरत हाल क्या आएगी? गैप, डिमांड और सप्लाई में गैप कितना है, चाहे वो सोशल सर्विसेज हो, चाहे वो इकोनॉमिक सर्विस हो। ये चीज थी हम लोगों के जहन में जब हमने सेंसस को डिजाइन किया। मैं ये कहूंगा कि हमने डे वन पे ऐसा डिजाइन कर लिया था, वो गलत है। जब हमने शुरू किया आज से तकरीबन 4 साल पहले ये काम, 4 साल से भी ज्यादा, 4.5 साल पहले, तो उस वक्त ये था कि सेंसस करने जा रहे हैं। फिर जब हमने, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हमें डिमांड्स बताई, तो हमारे सामने एक लिस्ट आ गई, और उसके बाद हमने हर एक को प्रायोरिटाइज किया। तो सबसे जो बड़ा गैप था पाकिस्तान में,
वो रियल साइड का डेटा, वो पाकिस्तान का सिग्निफिकेंट गैप है, बल्कि उसका कोई फ्रेमवर्क ही नहीं था। गैप को तो छोड़ दें, उसमें डेटा कहाँ से आता है? सीएमआई से आता है, सेंसस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक सेंसस पाकिस्तान में 2005 में या 4 में एक दफा हुआ, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आए, तो भी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो आपके पास रियल साइड का कोई फ्रेम नहीं था। ये एक बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे जो गैप्स डेटा के पूरे करता है, लेकिन कम से कम आपको एक बुनियादी फ्रेम दे देता है जिस पे आप मजीद, आपको डेटा के गैप्स नजर आने लग जाते हैं। रियल साइड का ये डेटा पहले मिसिंग था। अच्छा, अब आप आते हैं कि पॉलिसी में किस तरह ये थिंकिंग आपको, आपकी सोच को क्रिस्टलाइज करती है, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट या पॉलिसी एनालिसिस में हेल्प करती है। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, चारों सूबों में होता है, वफाक में होता है, उसको देखने में किस तरह आपकी मदद करती है, एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकती है, गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर सकती है, फिस्कल कंपैरिजन में कैसे मदद कर सकती है, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं थोड़ी देर तक 2-4 मिनट सोशल साइड की बात करूंगा, ताकि आपको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट नजर, ये ये कोई रिसर्च आइडियाज की गुफ्तगू नहीं है, ये एक जनरल गुफ्तगू है। तो आप इसी माइंड के सेट के साथ मेरे साथ रहें। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी सो हैप्पी टू एंटरटेन योर क्वेश्चंस। टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब आपके पास एज कोहॉर्ट का नंबर आ जाता है और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आपके पास सोशल सर्विस डिलीवरी के इंस्टीट्यूशंस आ जा सकते हैं, वो आपके पब्लिक हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्लिनिक्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। आप इसी तरह एजुकेशन में आपके सरकारी स्कूल हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, मदरसे हो सकते हैं। ये सप्लाई साइड की सिचुएशन है। अब जब प्लानिंग हो रही होती है और हम PC1 देख रहे होते हैं स्कूलों के, प्राइमरी हेल्थ साइट के या डिस्ट्रिक्ट हेड के, जो भी मंसूबे हैं, उसमें आमतौर पे ये इंफॉर्मेशन किसी नक्शे की सूरत में या डिमांड सप्लाई की सूरत में कभी भी प्रोजेक्ट नहीं की जाती। थोड़ा सा एक और डिटूर ले लें। तकरीबन 3 ट्रिलियन की पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है हर साल, 3 से 4 ट्रिलियन की नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन हो। आजकल हम IMF के प्रोग्राम में तो सप्रेस्ड है पब्लिक स्पेंडिंग। इसमें हजारों PC1 बनते हैं चारों सूबों में और फेडरेशन में, हजारों। किसी जगह, अच्छा प्लानिंग मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि आप डिमांड बताएं, असेसमेंट करें, लेकिन इस 21वीं सदी में जबकि हर चीज डिजिटाइज हो चुकी है, अपने सेलफोन देखें, सारी चीजें डिजिटाइज हैं। हम ना तो लिख रहे हैं ये पूरे प्रोसेस में कि PBS का डेटा या कोई भी डेटा रिजल्ट फ्रेमवर्क के लिए यूज होगा, हम वो नहीं लिख रहे। और जब लिख नहीं रहे तो जाहिर है कर भी नहीं रहे। तो अब आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जाएगी तो वो या तो किसी सियासी बुनियाद पर चली जाएगी या किसी एनेक्डोट पे चली जाएगी। वो कहीं लिखा ही नहीं है किसी मैनुअल में, किसी नोटिफिकेशन में नहीं है कि प्रोविंशियल ब्यूरो या PBS का डेटा PC1 के लिए यूज होगा। तो कोई भी उसको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा कि भाई नौशेरो फिरोज की इस तहसील में इतने लड़के इतनी लड़कियां हैं, यहाँ 50 स्कूल हैं, तो अल्लाह के बंदे तो 51वां स्कूल बना के क्या हासिल करना चाह रहा है। अब चूंकि वो हम बेसिस नहीं यूज करते, लिहाजा हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने का हमारा कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है। दैट नीड्स टू बी पुट इन प्लेस, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एग्री करते हैं कि ये फ्रेमवर्क अच्छा है और इसको होना चाहिए और इसको मान लिया जाए, तो ये गुफ्तगू होगी कि फ्रेमवर्क में कोई कमी है, इसमें कोई तो और डेटा लेके आना है, तो ठीक है डेटा लेके आ जाएंगे। फिर अगली गुफ्तगू ये होगी कि यार ठीक है, इतने बच्चे थे, इतने आउट ऑफ स्कूल थे, इतने इन स्कूल थे, और तुम किसी तरह ले आओ। अगर वो ज्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं तो नए स्कूल बनाओ, नई शिफ्टें लगाओ, ये तुम्हारा मसला है। या PPP में जाओ, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन कर रही है वो काम, लोग अपने स्कूल बना रहे हैं और पर प्यूपल पर ईयर पैसे ले रहे हैं हुकूमत से और एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैकेनिज्म तुम्हारा मसला है, चले जाओ। लेकिन उस फ्रेमवर्क पर अगर एग्री होते हैं तो फिर ये भी तो करो कि जो MS का डेटा है, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसमें खाली आप एक्सेस देखते हैं फिजिकल, आप एजुकेशन की क्वालिटी को नहीं देखते। उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक कंटिन्यूस असेसमेंट है, एक समेटिव असेसमेंट है। शशमाही सालाना इम्तहान समेटिव है और हर रोज क्विजेज असाइनमेंट जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूस असेसमेंट है। और उसके नतीजे में आप बच्चे की कुछ ना कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज को देखते हैं कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। 8वीं का बच्चा 8वीं का अलजबरा करे ना, 8वीं का बच्चा तीसरी का हिसाब नहीं कर पाए, हमारा अलमिया ये है।
तो उसमें टीचर्स की प्रेजेंस भी हो, बच्चे की असेसमेंट भी हो और फिर लर्निंग आउटकम्स हो। ये सूबों के पास मैंडेट है। अगर उस फ्रेमवर्क पर एग्री हो जाते हैं कि ये स्कूलों के जियो टैग्स हैं, तो वो जियो टैग एक फॉर्म क्यों नहीं बन सकता जिसमें गवर्नेंस का और असेसमेंट का डेटा चले जाए, और ये जो लर्निंग आउटकम को हम जब पीटते रहते हैं तो उसके बारे में कुछ करना भी शुरू करें। लेकिन अगर आप उस फ्रेमवर्क पर एग्री करेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान की लर्निंग पॉवर्टी की सूरत हाल नजर आ जाएगी। फिर ठीक है, सुबह एक दूसरे को बैश करें, वो उनकी पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज हैं, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन कम से कम गैप तो नजर आएगा ना। जब वो ये कर लेंगे तो फिर उनको ये भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार यहाँ लर्निंग पॉवर्टी कम है। हो सकता है कि यहाँ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रही हो सकता है यहाँ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रही हो सकता है यहाँ टीसीएफ काम कर रहा हो सकता है यहाँ जिंदगी ट्रस्ट काम कर रहा हो। टीसीएफ वाले कहते हैं कि तुम लोग तकरीबन 11 या 12 हज़ार रुपए पर बच्चा पर साल सरकार खर्च करती है। शायद 2017 का या 16 का नंबर है। सिंध में था, मैं एजुकेशन सेक्टर प्लान के लिए काम किया था, नॉट एग्जैक्टली कैन नॉट रिकॉल। उस वक्त ये नंबर था, बढ़ गया होगा, इन्फ्लेशन को लगा लें अब। टीसीएफ उन्हीं पैसों में 8वीं का बच्चा 8वीं का अलजबरा दे रहा है। ठीक है, तो फिर ये गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकती कि पीपीपी का दायरा कार बढ़ाओ? या तो टीचर्स बेहतर करो और उनकी गवर्नेंस इंप्रूव करो। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उससे नीचे तहसील एजुकेशन ऑफिसर है, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन है हर सूबे में। वो क्यों नहीं टास्क कर सकता डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को कि अगर तुम्हारे अशारिये यहां से यहां तक नहीं आते 3 साल में 5 साल में तो तुम्हें निकाल देंगे हम। ये गुफ्तगू भी उस वक्त तक नहीं शुरू होगी जब तक आपके पास फ्रेमवर्क नहीं होगा। किस चीज का? डिमांड और सप्लाई का। आगे चले जाएं, इम्यूनाइजेशन के बारे में सोच लें, आप हेल्थ के बारे में सोच लें, यही फ्रेमवर्क आपको फैसिलिटेट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। रियल साइड पर आ जाए, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक साइंसेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ एक चीज बताना जरूरी है, इकोनॉमिक्स के आप पॉलिसी के स्टूडेंट्स से सारे, हम सारे ही, कि इससे पहले जो हमने एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस किया था वो सीक्वेंशियल था। यानी पहले आप एक विलेज सेंसस करते हैं, 50,000 गांव में जाके आप 50-56 वेरिएबल्स पे डेटा लेके आते हैं, आपके पास फ्रेम आ गया। फिर उसमें से आप क्रॉप सेंसस करते हैं, मेजर माइनर, आपके पास एग्री सेंसस आ गया। फिर उसके बाद आप लाइव स्टॉक करते हैं, छोटे बड़े जानवरों का लाइव स्टॉक सेंसस आ गया, मशीन सेंस, ये सारे सीक्वेंशियल होते हैं। 10 साल का साइकिल है। विलेज सेंसस किया, फ्रेम किया, फिर प्लान किया, एक सेंसस किया, उसको रिजल्ट्स को ठीक किया, फिर गैप, फिर दूसरा। तो 10 साल का एक साइकिल होता है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और मशीनरी का। अब आप इकोनॉमिक डिसीजन का सोचें, अगर आप में से कोई फार्मर है और वो कह रहा है कि मैं इस दफा गंदम लगाऊं कि ना लगाऊं, आईएमएफ निकल गया, ये मसला है आप सबका, तो आप क्या पहले गंदम लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छा मैं ये वाली मशीनरी लेके आऊंगा, ये वाला हार्वेस्टर लेके आऊंगा, ये वाला टिलर लेके आऊंगा? या आप कहते हैं कि मैं अच्छा ये गंदम लगा रहा हूं तो मैं 5 साल बाद सोचूंगा कि छोटा जानवर रखूंगा, बड़ा जानवर नहीं? ऐसे नहीं होता। आपके वो डिसीजन उसी वक्त हो रहे होते हैं। जब आप क्रॉप की चॉइस करते हैं तो आप मशीनरी की भी चॉइस करते हैं, आप लाइव स्टॉक की भी चॉइस कर लेते हैं। इससे पहले हम सेंसस सीक्वेंशियल कर रहे थे तीनों, विच वॉज प्रॉब्ली नॉट करेक्ट। ये होने ही इंटीग्रेटेड चाहिए थे, क्योंकि डिसीजन एक साथ हो रहा है, तो फिर डेटा कलेक्शन सीक्वेंशियल क्यों हो रही है? तो इस दफा हमने इसको करेक्ट किया और डेटा कलेक्शन को साइमल्टेनियस किया, सीक्वेंशियल नहीं किया। तो नाउ द डेटा एंड द डेटा कलेक्शन इज इन कंफॉर्मिटी विद द वे डिसीजन इज मेड इन रूरल इकोनॉमी। अच्छा, अब आप आ जाएं वापस रियल साइड पे। एग्री लाइव स्टॉक की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की, उसके बाद में इकोनॉमिक सेंसस की दोबारा बात करूंगा, हाउसिंग सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस पे वापस जाऊंगा, और उसमें जो हम इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स का डेटा लेके हैं उसके बारे में बात करूंगा। एग्रीकल्चर पे बात करें आप। अभी एग्रीकल्चर की जो सूरत हाल इमर्ज होकर आई है, तो 78-78% फार्मर्स 5-5.5 एकड़ की जमीन पर हैं, सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं। तकरीबन 95% फार्मर्स 12.5 एकड़ से कम है। 12.5 एकड़ ज्यादा नहीं होते, 1 हेक्टेयर है। अच्छा, अब ये आपके पास डेटा आ गया, इसमें
आपको ये पता चल जाएगा कि किस जिले के किस पटवार में कितनी आउटपुट है मेजर क्रॉप की। सारा डेटा नहीं आया होगा इसका क्रॉप का। आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं किससे, कि उस जिले में या उस सूबे में या उस डिवीजन में जिसकी ज्यादा आउटपुट होगी। आपको आउटपुट गैप पता चलना शुरू होगा। जब आपको आउटपुट गैप पता चलना शुरू होगा तो साथ में एक और चीज भी आपको पता चलनी शुरू होगी कि कितने लोगों का गैप किस हद से ज्यादा है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अगर मैं कहूं आपको कि शेखुपुरा के मैं 500 फार्मर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 5 एकड़ वालों की। अगर फर्ज करें कि आप पेस्टिसाइड में हैं, आप फर्टिलाइजर में हैं, आप फार्म टूल्स में हैं, आप सीड्स में हैं, आप शायद नहीं खुश होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पूरे शेखुपुरा की, पूरे हाफजाबाद की, गुजरांवाला शहर की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और इसमें 50,000 फार्मर हैं, आप एकदम से सुनना शुरू कर देंगे। 50,000 फार्मर्स के लिए कोई एक सीड, 50,000 फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर, 50,000 फार्मर के लिए टूल्स, 50,000 फार्मर के लिए ट्रैक्टर एक दूसरा माने रखता है। और 500 फार्मर के लिए क्या चीज किक इन कर रहे हैं आप? इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का सोचने का तरीका ही आपको किस तरफ पुश करेगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल पे पुश करेगा, जो कि हमारी स्टीव कार्लसन याद आ रहा है, उसने जब मैंने पढ़ा यूएसए में इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो उसने हमारे दिमागों को इतना टीज किया, इतना टीज किया, और उसने कहा कि मैं तुमसे कोई डायग्राम नहीं बनवा रहा, मैं तुमसे कोई इक्वेशन नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें सोचने पर मजबूर करूंगा कि स्पेशलाइजेशन से मिलेगा क्या। एक आदमी जो बेवकूफों की तरह खाली छोटी छोटी कीलें बनाता जा रहा है, पुर्जे बनाता जा रहा है, वो क्यों बनाता चला जाए? इसलिए कि आप उसको स्पेशलाइजेशन पे फोर्स कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो? ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिले, और इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा पॉलिटिकल अट्रैक्शन होगी, सब कुछ ज्यादा होगा और अच्छा ज्यादा होगा। ये नहीं होगा कि किसी शख्स का फायदा हो रहा है, किसी ग्रुप का फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है। उसमें ठीक है, पॉलिटिशियन का फायदा हो तो व्हाई नॉट, हो जाए। जब आप इस डिमांड और सप्लाई को, कि कितने लोग, कितने हजार इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी पैदावार पर हैं, उनकी पैदावार का गैप कितना है, उस गैप में सबसे जो लो हैंगिंग चेरी है, सपोज वो सर्टिफाइड सीड है गंदम का, तो फिर आप ये सोचेंगे कि मैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट में दूं तो कितने पैसे लगेंगे। फर्ज करें आपको पता चला कि 2 अरब लगेंगे। फिर आपने कहा कि इनमें से हर एकड़ में से 15-15 मन ज्यादा आ गई, 30-35 की बजाय 45-50 आ गई, तो मुझे कितनी गंदम मिलेगी? सपोज आपको पता चला कि 150 अरब की मिलेगी। तो फिर आप कहेंगे यार, ये 2 अरब 3 अरब से मैं क्या चिमड़ा बैठा हूं, ये 3 अरब मैं दूं इनको ताकि मुझे 100 अरब मिले। तो आपको फ्रेमवर्क कौन सा मिला? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस मिला। इकोनॉमी ऑफ स्केल, फर्स्ट डिमांड एंड सप्लाई, आउटपुट गैप, इकोनॉमी ऑफ स्केल, कॉस्ट एंड बेनिफिट। यही चाहिए होता है ना आपकी अपनी पॉलिसी को पुश करने के लिए। इसमें बेस भी है, बॉटम अप भी है और टॉप डाउन भी है। इस थिंकिंग के साथ अगर आप इन 3 चीजों के बारे में सोचना शुरू करें, हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस, आप यकीन करें, आपको अगर सिर्फ आप डिस्कशन में लेके आए ना ये चीजें और उसके बाद वेरिएबल्स को देखना शुरू करें, इम्कानात को देखना शुरू करें, इतनी जरखेज जमीन है कि फिर आपको आइडियाज की किल्लत नहीं महसूस होगी। पता नहीं कितने रिसर्च आइडियाज निकलेंगे आपके पास। एक बहुत सीवियर गैप है पाकिस्तान के डेटा में। यहाँ अतीफ साहब मेरे कोलीग बैठे हैं, नेशनल अकाउंट पूरा ये देखते हैं। अक्सर हमारी गुफ्तगू रहती है कि पाकिस्तान में आउटपुट का डेटा फिर भी बुरा भला थोड़ा बहुता है कहीं। जो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, वो है प्रोडक्टिविटी का। अभी किसी जगह इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी हो सकते हैं, किसी जगह एंडोजेनस ग्रोथ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रिटर्न्स पे हो रही हो हर चीज हर जगह। 1 और 1 सवा 2 भी हो सकते हैं, कोई 2.5 भी हो सकता है, कोई 3 भी कर सकता है। तो जो 3 कर रहा है उसकी जाहिर है कुछ ना कुछ इनपुट सबके यूनिफॉर्म होंगे, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं होगा। तो फर्क कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना, प्रोडक्टिविटी जिसे हम कह देते हैं। तो क्या हमारे
इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में, स्टेक होल्डर्स में, रिसर्चर्स में ये सोच है कि वो पाकिस्तान के डेटा सिस्टम को पुश करें, उसको क्रिटिसाइज करें, अपनी डिमांड बताएं कि यार तुम ये प्रोडक्टिविटी का डेटा क्यों नहीं लेके आ रहे हो? 80 साल हो रहे हैं मुल्क को बने हुए। हम जानना चाहते हैं कि कौन लोग 1 और 1 ढाई कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे। हम उन लोगों से सीखना चाह रहे हैं, फिर बाकी लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। ये तो पॉलिसी है कि यार इस तरीके से तुम 1 और 1 ढाई कर लोगे, 2.25 कर लोगे, ढाई में टाइम लगेगा, लेकिन उस रास्ते पे तो लेके आए। ये सोच आप, और फिर इसमें आप स्विच करें, स्टेटा और सेस को छोड़ें और आर पे स्विच करें। मैं सब आप लोगों को स्ट्रेस कर रहा हूं ये, क्योंकि ये सारी कैपेबिलिटीज, ये सारे इम्कानात जब तक आप डिजिटली नहीं दिखाएंगे, उसके लिए जो आपके पास टूल्स हैं वो बेहतर होने चाहिए। अगर आप उन्हीं चीजों में रहेंगे तो फिर आप वो सारी कैपेबिलिटीज, वो आपको तस्वीर खुद ही नहीं नजर आएगी, तो आप दूसरे को क्या दिखाएंगे? यू हैव टू स्विच। आर में, पाइथन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक और बात मैं करना चाहूंगा, पीबीएस को मैंने तकरीबन 4 सवा 4 साल पहले ज्वाइन किया। इससे बेहतर मेरे 35 साल 34 साल हो गए काम करते हुए। इससे बेहतर प्रोफेशनल हिस्सा नहीं आया मेरी जिंदगी में। बहुत ही शानदार ही है और अल्लाह का शुक्र है चल रहा है अभी तक ये। पीबीएस में एक कमजोरी थी, कम्युनिकेशन फंक्शन पे सेंसिटाइज नहीं था पीबीएस, जिसे हम मॉडर्न लिंगो में कॉम्स कह देते हैं। अब मैं आपको थोड़ी देर आपसे सोचवाता हूँ कि आपको अगर मैं नेशनल अकाउंट की एक बुकलेट दूं जिसमें फॉन्ट साइज 6 में लिखा हो कि ये पाकिस्तान की जीडीपी थी 1951 में 52-53, फिर ये 25 आ गया, ये एग्रीकल्चर था, उसमें मेजर क्रॉप्स थी, माइनर क्रॉप्स थी, फिर आपका फल थे, फॉरेस्ट था, फिशिंग थी, सर्विसेज में चला गया, सेहत, तालीम, दिफा, पर्सनल सर्विसेज, अकाउंटिंग, बैंकिंग वगैरह वगैरह, इंडस्ट्री में चला गया, 40-50 इंडस्ट्रीज आ गई, और छोटे छोटे नंबर्स हैं। और मैं कहूँ कि यार इस पे जल्दी से मुझे एक एनालिसिस दे दो, वो जल्दी बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है, तो आप कहेंगे कि यार ये अजीब आदमी है। अभी तो मुझे इन नंबरों को समझने में कोई 25-30 दिन लगेंगे, पता नहीं किस किस से पूछूंगा, समझूंगा, फिर उसमें कोई ट्रेंड निकालूंगा, फिर इनका आपस में भी कुछ ताल्लुक होगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, तो मुझे तो लगेंगे 4-5 महीने इस पे कुछ लिखने में। इससे क्या पता चला कि जब मोस्ट पैथेटिक फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रीडिंग, क्योंकि रीडिंग करते हैं आप, उसके बाद प्रोसेस करते हैं तो वो इंटरनलाइज होती है, फिर आप करीब आते हैं कि उसको आप शेयर करें और आर्टिकुलेट करें, एक्सप्रेस करें। और सबसे बेहतरीन हिस्सा, तरीका जो कम्युनिकेशन का है, वो विजुअल्स का है। अब अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बात कर लेता हूं कि अगर मैं आपको बताता कि जनाब रहीम यार खान में जनाब चल रहा है कॉटन कॉटन, 1950 से कॉटन 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 कॉटन, 24 तक कॉटन आ गई, वे 18 तक 17 तक आ गई, फिर देखना शुरू किया कि ये गन्ना भी आ गया। रहीम यार खान में क्यों गन्ना आ गया? बोरे वाला, मेलसी, रहीम यार खान, मुल्तान, ना तो कॉटन होनी चाहिए थी। अब देख रहे हैं गन्ना आ गया और साइजेबल आ गया, तो ये चीज नंबर्स में आ गई। अच्छा, वही चीज मैं दिखा दूं आपको कि एक डायनामिक मैप दिखा दूं कि रहीम यार खान पूरा दिखा दूं, और उसमें मैं 3 फसलें दिखा दूं, चावल, गन्ना, गंदम, कपास। तो कपास कपास कपास, फिर जनाब कपास को ओवरटेक गन्ने ने, गन्ना ऊपर चला गया। वो इसलिए कि नहरें निकाल दी तो ज़ाहिर है गन्ने ने ऊपर जाना ही था। तो पिक्चर में ही बात आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। नंबर्स में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस है ना, उसमें टाइम लगेगा आपको, फिर आप बताने की कोशिश करेंगे, इस काबिल होंगे कि बता दें। वही चीज जब आप तस्वीर में दिखा देंगे तो आपको भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, फिर आपको दूसरे को समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर दैट रीजन ऑल्सो ये कैपेबिलिटीज लेना जरूरी है। एक और बात करूंगा। अच्छा फहीम साहब, मेरे पास टाइम कितना है? टाइम है, ठीक है। एक और बात बताने की कोशिश करूंगा। अगेन आई मीन इट्स अ फिक्टिशियस एग्जांपल व्हिच आई हैव कुक्ड एंड आई हैव बीन शेयरिंग इन सेवरल ओकेजन। स्टंटिंग पाकिस्तान का एक मसला है, ठीक है, 40% बच्चे स्टंटेड है, और ये इरिवर्सिबल है, जो स्टंटेड हो गया हो गया।
अच्छा, अब कोई कहता है कि 1990-91 से तो मैं स्टडीज देख रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ स्टंटिंग पे। फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 11 साल हो गए मुझे, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी देखी है, तो मुझे उसका है अंदाज़ा कि 1990-91 में जो प्रोजेक्ट्स आते थे, देवर रिलेटिवली सिंपलर एंड दे अचीव्ड। 2000 में आए तो दे बिकेम कॉम्प्लेक्स, 2010 में आए तो और कॉम्प्लेक्स हो गए, और 20 में इतने मुश्किल हो गए कि जब प्रोजेक्ट के जैसे हमें स्ट्रक्चर नजर आता था, हम कहते थे यार ये सरकार का पैसा गया, ये वर्ल्ड बैंक वाले लोन मंड के चले जाएंगे, होना हमारा इससे कुछ भी नहीं है। वो हम वार्न करते, इन्फॉर्म करते, लेकिन नहीं रोक पाते थे उसको। अब स्टंटिंग पे एक कोई बंच ऑफ स्टडीज है, वो कह रही होगी कि भाई स्टंटिंग इन एरियाज में ज्यादा है, राइट बैंक ऑफ सिंध में ज्यादा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो कीर्थर का सिलसिला है वो कंटिन्यूटी है हिमालय की इन सम वेज, और जो राइट बैंक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दादू है, सेवन है, लाड़काना फिर बेहतर है, वो उसका स्लोप नहीं है, ये इस तरह है। तो लेफ्ट बैंक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मीरपुर हो गया, नौशेरो हो गया, नवाबशाह हो गया, हैदराबाद हो गया, मटियारी हो गया, ये स्लोप में है। तो यहाँ हाइड्रोलिक्स ऐसी है कि पानी इधर आ जाता है, लाड़काना तक वो प्लेन है, और उसके बाद थोड़ी एलिवेशन है, कीर्थर या उसकी हिमालय की टेल है वो, वहां पानी मुश्किल जाएगा, वहां से सैलाब तो नीचे आ सकता है, पानी ऊपर नहीं जाता, नतीजा है कि वो जगह ड्राई और बैरन है। ये उसकी एक फिजिकल कंडीशन है जिसको आप नहीं चेंज कर सकते। थर, वहां आपको पता है कि रेन नहीं होती, तो लंबे लंबे एपिसोड्स होते हैं बारिश ना होने के, उससे ड्राउट होता है और उसके बाद मसाइल होते हैं, और उनका मेन स्टे है भी लाइव स्टॉक, और उनके पास इतनी लिविंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो कोई कहे कि जनाब आप थर में आपके पास वो 4 साल तक रेन नहीं हुई, तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट औरतें थी वो इतनी ग़िज़ाइयत नहीं थी उनमें, बच्चे भी वैसे रह गए और ये स्टंटेड हो गए, ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि जी क्रॉनिक पॉवर्टी है, अच्छा जी क्रॉनिक पॉवर्टी है तो उससे क्या हुआ जी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अगेन न्यूट्रिशन नहीं हुई, साइकिल वही चल गया, प्रेग्नेंट औरत थी और वो बच्चे गरीब रह गए। कोई कहे कि आपकी जो वो प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, आपका बेसिक हेल्थ यूनिट या तो फंक्शनल नहीं है या बहुत दूर है, फैमिली प्लानिंग पे एडवाइस नहीं है, हो गया, ठीक है, कंक्लूड नहीं कर पाते हम। अच्छा, नतीजा क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आया वो सिर्फ पॉवर्टी को कर रहा है, एक प्रोजेक्ट आया वो सिर्फ न्यूट्रिशन को, इनको मुर्गियां दे दो, छोटे कोई जानवर दे दो, बकरियां दे दो, उस पर कर रहा है। एक प्रोजेक्ट आया वो बिस्प पे कर रहा है, जिसकी जो समझ में आ रही है वो कर रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, इट्स हाइपोथेटिकल, कि यार तुम स्टंटिंग के डेटे पे उसका एक मैप बना लो, डिजिटल मैप, उस पर तुम क्यों नहीं लेयर करते मैरिज एज और बर्थ स्पेसिंग। अगर एक लड़की 16 साल में, 17 साल में उसकी शादी हो गई और उसने 4 दफा या 5 दफा बच्चा दिया, बर्थ स्पेसिंग कम है, वो स्टंटेड होगी, इट्स वेरी लाइकली, और बच्चा स्टंटेड होगा वेरी लाइकली। अगर किसी की शादी 22, 23, 24, 25 साल में हुई और उसकी बर्थ स्पेसिंग 2 साल से ज्यादा है, इट्स हाईली लाइकली कि वो स्टंटेड नहीं होगा, अदर थिंग्स बीइंग सेम। ये क्यों नहीं हम लेयर लगाते? हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये जब आपकी ये सोचने का तरीका ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन इस पर होगी कि मैं इसको डिजिटली दिखाऊं, नक्शे की सूरत में दिखाऊं, और वो ऐसी फ्लेक्सिबल फॉर्म हो कि मैं उस पर दूसरी चीजें, इम्कानात जो मुझे पॉलिसी का नक्शा दे, उसका रास्ता बताएं, वो उस पर मैं लेयर कर सकूं। उसके लिए जरूरी है कि आप बेस मैप क्रिएट करें। बेस मैप होगा तो आप लेयरिंग करेंगे, बेस मैप नहीं होगा तो आप लेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सारी जो आइटरेशंस हैं कि इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं, ये सप्लीमेंटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ड्राइविंग नहीं हो सकते। तो जैसे ही उस फैक्टर को लगाएंगे, आपको ओवरलैप ज्यादा होता हुआ नजर आ जाएगा, उसी को आप नंबर्स में जब क्रंच करेंगे तो कोरिलेशन ज्यादा होती हुई नजर आ जाएगी, रिजल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट आते हुए नजर आ जाएंगे। दैट्स इकोनोमेट्रिक्स, वी डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट। लेकिन ये सोचने का ये तरीका है सप्लाई डिमांड का, कम्युनिकेशन का, ये आपको पॉलिसी पे आगे पुश करेगा, ये आपको सॉल्यूशंस का ज्यादा आइडिया देगा, और फिर आपको गैप्स भी नजर आने लग जाएंगे। आप पीबीएस या प्रोविंशियल ब्यूरोज पे या मिनिस्ट्री से आप चढ़ाई कर सकेंगे कि यार अब डेटा तो लेके आ नहीं रही है, मैं कहां से करूं पॉलिसी, कहां से करूं रिसर्च। लेकिन जब तक आप उस सोच पे नहीं जाएंगे,
ये सब कुछ नहीं होगा। और आज के दौर में जिसमें ये फ्री सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल पब्लिक हैं, यूट्यूब पे हर चीज़ भरी हुई है, यहाँ मल्टीलेटरल्स, HEC, पता नहीं कितने इदारे आपको सिखाने पर लगे हुए हैं। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो फिर ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, और आपने जो कंट्रीब्यूट करना है पॉलिसी में, क्योंकि पाइड एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, तो वो फिर गैप रहेगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करता हूँ। सॉरी दैट इट वाज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड टॉक, लेकिन वो बातें तो वो जहन में हैं। ये तीनों सर्वेज, इनको आप पढ़ें, थॉरोली यूज़ करें। अगर कोई आपको मज़ीद डेटा चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर आप मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं इवन पॉलिसी में, तो PBS इज़ योर इंस्टीट्यूट, यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत शुक्रिया। Sir, thank you so much for very interesting talk. Interactive भी थोड़ी लग रही थी, थोड़ा लग रहा था दिल से बात कर रहे हैं। अच्छा, taking the liberty as a moderator, let me ask the first question and then मैं invite करूंगा कि आप अपना हाथ खड़ा करें और फिर हम आपकी तरफ आते हैं। सर, अर्बन पाकिस्तान एक बहस में रहा। आप सेंसस करने जा रहे थे, आप पाइड आए हमारे पास। हमने उस टाइम भी कहा कि इसको सेट कर लें, अभी कर लें, ताकि ये अर्बन रूरल वाला जो है वो मामला ठीक हो जाए। हम अगर आज की डेफिनेशन पे जाएं तो हम रूरल में बैठे हुए हैं इस टाइम। ये कहाँ से रूरल रूरल रह गया? और भी आप मोटरवे पे जाएं, सड़कों पे जाएं, अभी वर्ल्ड बैंक ने देखें वो एक नंबर दे दिया, 80% पाकिस्तान अर्बन है। तो पहली बात तो ये कि ये हम कब इसको करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्बन की डेफिनेशन को वाजे करें। और क्या कोई ऐसी डेफिनेशन है जो अक्रॉस द रीजन और प्रोविंसेस वो अर्बन की, क्या वो रह सकती है, हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं? उसके ऊपर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है PBS का? देखिए, डेटा चीख चीख के कह रहा है कि इस झूठ को खत्म करो, लेकिन अब हम पहले तो अब देखें, आपका पॉपुलेशन पे आपका जॉब कोटा है, पॉपुलेशन पे आपकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन पर आपका NFC है, और उसके अंदर वो अर्बन और रूरल की लेयर आ जाती है। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाता है। ये कल हमने लेबर फोर्स सर्वे डिसेमिनेट किया है, 4% आपकी लेबर एग्रीकल्चर से निकल गई है और 4% सर्विस में चली गई है। सर्विस में थोड़ा सा मैं बात बड़ी करूंगा। सर्विस में एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड है। सर्विस ड्राइव कर रहा है पाकिस्तान की GDP को फॉर क्वाइट सम टाइम, 7 8 10 साल से। और पिछले 4 साल से, जब से हमने क्वार्टरली GDP करना शुरू किया, तो 2.5 3 साल से ये चीज नजर आ रही है कि सर्विसेज वो वाली सर्विसेज नहीं है कि आपकी ट्रकिंग है, आपकी रिटेलिंग है, आपकी हार्वेस्टिंग है। रूरल इकोनॉमी कमोडिटी बेस्ड सर्विस नहीं है। ये सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन अर्बन एरियाज। नाई की दुकान, सेलफोन वाले की दुकान, फिक्स करने वाली की दुकान, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पर्सनल सर्विसेज, टेलर, ये रूरल इकोनॉमी में कम है, ये अर्बन में ज्यादा है। नॉट टू बी कोटेड, इट्स नॉट ऑफिशियल। जो डेटा को देखें कि स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी क्या है, दुकानों की डेंसिटी क्या है, सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज की डेंसिटी क्या है, ATMs की, बैंक्स की डेंसिटी क्या है, ये सब डेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंसस में आ गया है। तो पाकिस्तान 80% अर्बन है। लेबर फोर्स सर्वे में 4% जो लेबर गई है वो सर्विस में गई है, वो अर्बन एरियाज में ये ट्रांजिशन हुई है, रूरल में नहीं हुई है। GDP जो आ रही है आपकी सर्विस से, वो अर्बन से आ रही है। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, not produced in rural area and consumed in urban. On the contrary, produced and consumed in urban areas. तो ये सब डेटा आपको चीख चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान अर्बन है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है जब भी हो। सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड टॉक। हार्ट टू हार्ट आपने बात की। Thank you. इट्स नॉट लाइक मुझे एक रूटीन प्रेजेंटेशन थी। अच्छा, जिस तरह आपने अभी अर्बनाइजेशन की बात की, अगर तमाम सर्विसेज वहीं से प्रोड्यूस हो रही हैं अर्बन एरिया से, इसका मतलब है कि जो हमारे मुल्क में जो अर्बनाइजेशन का थोड़ा सा, हमारे यहाँ थोड़ा सा साइड पे होंगे, मुझे सर नजर नहीं आ, वो जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो माइग्रेशन हो रही है अर्बनाइजेशन की तरफ, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी रीजन होगी। क्या कुछ ऐसा डाटा है कि रेशियो ऑफ अर्बनाइजेशन भी आप कैलकुलेट करते हैं? रेशियो ऑफ अर्बनाइजेशन, देखिए ये थॉट्स हैं जो डेटा में आपको
डेटा के फीचर से नजर आ रहा है उसकी बेस पे मैंने कहा। अब जो सेंसस में हम आते हैं और कायदे कानून की बात करते हैं, तो उसमें हम जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं सूबों की, उनसे हम कहते हैं कि आप हमें अर्बन रूरल का डेटा दे दें। वो डिमार्केटेड बाउंड्रीज अपने जिलों की, तहसीलों की, वो सारी हमें दे देते हैं, और उसी को हम सेंसस की प्लानिंग के लिए और स्पेशली रिजल्ट्स डिसेमिनेशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि वहां से फिर आपकी आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डिलिमिटेशन होती है बाउंड्रीज की, और उस पर इलेक्शन होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है हाउसिंग सेंसस का और इलेक्शन का। जो अभी तक हमने गुफ्तगू की कि उन डिमार्केशंस को पीबीएस चेंज नहीं कर सकता, इसका मजाज नहीं है। वो करेगा सूबाई, लेकिन फिर उससे रिलेटेड वो बात आ जाती है कि आपका जो डेवोल्यूशन का अगला स्टेप है प्रोविंशियल फाइनेंस, वो मुअल्लक है। तो वो जब उसकी डिमांड होगी तो फिर वो डिमार्केशन होगी, पीबीएस को डायरेक्शन मिलेगी कि तुम उस पे सेंसस या सर्वे करो, हम उस पे कर देंगे। लेकिन अभी तो वी हैव टू गो बाय द रूल्स। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। Very excellent presentation about the importance of data, and I really appreciate the way that you explained that we have a lot of micro data. But the question is more of the technicality of these data, how we can, as a researcher, use those data. Because these are the census data, what about the accessibility of the micro data? This is a very key question. And probably right now, as I just mentioned before this seminar, if I really interested for like agriculture census data, how easily accessible to me, it's not about me, it's all about the other researcher, that if they were really wanted to use that more effectively. The second, the more important question is how the three different data sets would be combined into a unique data set. Do we have any identifier that help us? Maybe we can define a different level of aggregation. Probably like, for example, Moza would be a good option to combine all three data sets. Do you have any indicator that we as a researcher use to combine these data sets in a much broader way? This is the one question. The second, how these data set easily accessible to us, because we are interested more in the micro data set rather than the report. Those are produced by the PBS. So this is the question that I really interested in. Maybe as you mentioned, if there is any sensitivity involved, and I always believe there are sensitivities, we end up with nothing. Thank you. Your first question is technical. Second question, I'll talk. I'll try to respond in little detail. डॉक्टर साहब, पीबीएस पिछले आपने 6-8 सालों में देखा होगा कि काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वेबसाइट भी आपने शायद रिसेंटली विजिट की हो। अब पीबीएस के साथ मसला ये है कि हमें वो कोई सांस नहीं मिल पा रहा जिसमें हम वो सारे प्रोटोकॉल, जिसमें हम सूडो कोई नंबर चला के एनोनिमाइज करते हैं डेटा को, आइडेंटिफाइड ना हो। उसमें हमें पफ फाइलें जनरेट करनी है सेंसस की, पब्लिक यूज फाइल्स, और उसमें पाकिस्तान के 157 डिस्ट्रिक्ट्स का तकरीबन 5% डेटा हमने एनोनिमाइज करना है। वो we could not find a peaceful mental block of a month or so कि जिसमें हम वो डेटा निकालें और उसके बाद देख लें कि इसमें कोई गैप नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, और उसको डिसेमिनेट कर दें। लेकिन वो इन प्रोसेस है, और मैं 2025 में तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2026 के इंशाल्लाह पहले क्वार्टर में हो सकता है, पहले 1 या 2 महीने में आपको पफ फाइल्स हम वेबसाइट पे डाल दें, तो ये तो हम दूर कर देंगे। दूसरी बात आपने जो की ना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये मेरी भी ख्वाहिश है। उसमें सेंसिटिविटीज हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग यू। आपके पास सेंसस का डेटा आ गया, आपके पास विद इन सेंसस आपने इकोनॉमिक यूनिट्स लिए हैं, वो डेटा आ गया, आपके पास लाइव स्टॉक का आ गया, और आप एक कोई पूरी पिक्चर बनाना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ग्रांड डेटा बनाऊं जिसमें मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी पता चले, मुझे एग्रीकल्चर ग्रोथ का भी पता चले, मुझे लाइव स्टॉक की ब्रीड का भी पता चले, मुझे स्किल गैप का भी पता चले, और मुझे जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी उसका भी पता चले, स्टंटिंग के रीजंस का भी पता चले। आप ये सब, और ये करना चाहिए, मतलब मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ये ना तो एक दिन में होने वाला काम है, ना ये इतना कोई बगैर रिस्क का काम। बदकिस्मती ये है कि एक वेरिएबल जैसे इकोनॉमिक्स, उसका लेबर का वेरिएबल, हमने सेंसस में एम्प्लॉयमेंट का डेटा पूछ लिया,
लेट आ रहा है रिग्रेट के नहीं पूछना चाहिए था। वो उसका जो भी नंबर आया उस पे हमारे जो नकाद हैं, रिसर्चर हैं, वो लेबर फोर्स के नंबर को लेके सेंसस पे चढ़ गए और पूरे सेंसस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि गलत हुआ, कि सेंसस गलत नहीं हुआ। सेंसस में जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा हम ठीक है दिया, लेकिन हमने कभी भी नहीं कहा कि सेंसस वाज मेंट टू टेल यू, इन्फॉर्म यू अबाउट एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल है लेबर फोर्स सर्वे, क्योंकि उसमें रेफरेंस टाइम पूछा जाता है, पूरी स्टैंडर्ड हर चीज ट्रेनिंग उसके हिसाब से होती है, वो स्पेशलाइज सर्वे। अब उसमें आप सेंसस के एम्प्लॉयमेंट डेटा को यूज करके आप कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट 20 या 22% है, लेबर फोर्स से आई है वो गलत है, या सेंसस गलत था, तो आप पूरी कॉम को एक मुसीबत में डाल देते हैं। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज किसी हायर लेवल पे डिसाइड हो, फिर उसके बाद हम इन तीनों डेटा सेट्स को और इसके अलावा डेटा सेट्स को, जिसमें लेबर का, टीवेट का, एग्रीकल्चर क्रेडिट का, वैल्यू चेन्स का, ये सब भी अब करें। लेकिन ग्रेजुअली, और इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, एक दिन में ना घर तो होने वाला नहीं है। और कहीं आप बेस बनाएं, उस पर आप लेयरिंग करें, देखें कि जो उससे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो दूसरे डेटा सेट से बात कर रही है कि नहीं कर रही, डिविएशन है, उसकी प्लॉजिबिलिटी निकालें, आगे चलें। तो वी शुड एम्बार्क ऑन इट, बट इन अ वेल थॉट वे, ताकि आपके इकोसिस्टम को कंट्रोवर्शियल ना बनाए, गैप्स आए और उसको आप हल करें, और इस पूरे इन सब डेटा को इंटीग्रेट करके आप मजीद इनकी यूजफुलनेस बढ़ाएं। तो आई एम विद दैट, बट फॉलोइंग अ प्रोसेस। थैंक यू सर। बहुत ही जी, बहुत ही आला प्रेजेंटेशन थी और बहुत मुझे मज़ा आया सुन के। थैंक यू। एक कंसर्न जो बहुत पाकिस्तान में वाइडली है कि हमारा इनफॉर्मल सेक्टर जो कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, 30% टू 70% तक जाता है डिफरेंट स्टडीज़ में। आपका सारा का सारा काम डॉक्यूमेंटेड है, हम जो डाटा रिपोर्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। तो क्या प्रॉब्लम है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहा हमसे, और पीबीएस की रीच वहाँ तक क्यों नहीं हो रही? नंबर वन। दूसरा मेरा जो कंसर्न है वो ज़रा थोड़ा टेक्निकल है, वो ये है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन वाला डाटा है वो ऐसे का जो है वो एक डिफरेंट कोड के ऊपर हम जनरेट करते हैं, उसकी स्कीम ऑफ कलेक्शन जो है वो डिफरेंट है, और जो हमारा जो जीडीपी की जो क्लासिफिकेशन है वो यूएन वाली जो है वो और तरीके से है। तो हमें ये नहीं पता लगता कि व्हाट इज़ द वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेक्टोरल प्रोडक्शन एंड जीडीपी में उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसकी पर्टिकुलर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से मैं पिक कर लेता हूं कि उसमें तो इतनी है, तो वो पता लग जाता है, जीडीपी में नहीं पता लगती। आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्सेशन कि हम कह देते हैं कि जी कि इंडस्ट्री टैक्स देती है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री देती है ये नहीं पता लगता। तो ये एक किस तरीके से हम ये जो है दो डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं, एचएस हो गई, आईसेक हो गई या यूएन वाली हो गई, इनको कोई मर्जिंग का कोई तरीका है या नहीं है, ये मेरा कंसर्न है। मैं मेरा ख्याल है अतीक से रिक्वेस्ट करूं, ये नेशनल अकाउंट पे इनकी माशाल्लाह बहुत नॉलेज है। अतीक साहब, अगर आप एक चीज को मैं भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा, लेकिन आप यू आर बेटर प्लेस टू आंसर। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया सर। ये क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर होता रहता है और ये क्वेश्चन भी बार बार उठाया जाता है कि हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैप्चर नहीं कर रहे हैं सर, और जीडीपी जो है वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का है। ये परसेप्शन मतलब उसको ठीक करने की जरूरत है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, जो जीडीपी हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें फॉर्मल सेक्टर भी कैप्चर हो रहा होता है और इनफॉर्मल सेक्टर भी कैप्चर होता है। जी, जो हमारा इशू है वो यही है सर, कि हमारा इशू ये है कि अगर आप हमसे ये कहें कि क्या इसमें इनफॉर्मल कितना है और फॉर्मल कितना है, या डॉक्यूमेंटेड कितना है या अनडॉक्यूमेंटेड कितना है, वो हम बाइफरकेट नहीं कर पाते, लेकिन कैप्चर बहरहाल कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह दे रहा हूं कि फर्ज करें हम वीट कैप्चर कर रहे हैं, तो वीट की टोटल आउटपुट हमारे पास अवेलेबल है। हम कहते हैं कि 23 मिलियन टन हो गई या 24 मिलियन टन हो गई, इतनी वीट की प्रोडक्शन हुई है इस मुल्क के अंदर। अब वीट की प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आ जाती है, उसकी वैल्यू एडिशन भी आ जाती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितनी वीट फॉर्मल सेक्टर से आई है और कितनी वीट इनफॉर्मल सेक्टर से आई है, तो ये पीबीएस नहीं बता सकता है, इसलिए कि जो सोर्सेज हैं
वो इतने वेल डिफाइंड अभी नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारा इकोनॉमी का है कि हमारे पास अभी भी वेल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, और उस पे ग्रेजुअली काम भी हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी उस पे काम कर रहे हैं, और जो अवेयरनेस और जो डेटा की यूज़ के बारे में जो सर का इनिशिएटिव 2-3 साल से रहा है, और अब आप देख भी रहे हैं कि जो दो डेटा फेस्ट हमने किए सर, वो आप बीच में छोड़ गए अपनी तकरीर में, थोड़ा उसका जिक्र करना चाहिए था आपको। तो वो डेटा फेस्ट के हवाले से भी वी हैव कम आउट ऑफ अवर ओन शेल एंड वी हैव ट्राइड टू अप्रोच टू द यूजर्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द डेटा कि ये डेटा पीबीएस के पास है, आपके पास कौन सा डेटा है, लेट अस लिंक ऑल ऑफ दिस डेटा टुगेदर एंड देन मेक अ बिगर पिक्चर ऑफ इट। सो दिस इज एन एफर्ट विच वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू। जो क्लासिफिकेशन वाली बात सर, उसमें ये है कि पीबीएस जितनी भी क्लासिफिकेशन यूज कर रहा है, वो चूंकि एनएसओ है, और एनएसओ के लिहाज से वो जो भी इंडिकेटर बना रहा है, चाहे वो पॉवर्टी का बना रहा है, वो इन्फ्लेशन का बना रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का बना रहा है, वो सिर्फ लोकली कंज्यूम नहीं हो रहा होता, वो रीजन में भी कंज्यूम होता है, वो इंटरनेशनली भी कंपेयर होता है। वो जब भी कंपेयर होगा, वो उसी सूरत में कंपेयर होगा जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनेगा और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस को फॉलो कर रहा होगा। तो पीबीएस जितनी भी क्लासिफिकेशंस यूज कर रहा है, जो भी डेटा सेट बना रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशन का बना रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का बना रहा है, जीडीपी का बना रहा है, इट इज फॉलोइंग द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो जो सर ने बात की है कि हम शेयर नहीं निकाल सकते, ये बात सही है कि अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। वी आर डूइंग अवर एफर्ट, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सारा काम पीबीएस ने नहीं करना है। ये एक पूरा नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जिसने ऊपर आना है। हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, हर इंडस्ट्री ने, हर डिपार्टमेंट ने, हर मिनिस्ट्री ने, कि इस ग्रोथ के अंदर उसने अपने आप को इमर्ज करके आगे लेके आना है। सो दिस इज एन एफर्ट विच पीबीएस इज डूइंग, और होपफुली इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें भी इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। इसमें बस एक चीज का मैं इजाफा कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, जो आपने अनडॉक्यूमेंटेड की और खासतौर पे टैक्स में बात की, मैं वापस हाउसिंग और सेंसस डेटा पे चला जाता हूँ। इसमें हमने फिजिक को यूज करते हुए हमने सारे इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट को जियो टैग किया है। कौन सी सबसे ज्यादा उसमें एस्टेब्लिशमेंट्स हैं रिटेल की। अब अगर आप रिटेल पे फोकस, रिटेल है, होलसेल है, सर्विस शॉप्स हैं, पर्सनल सर्विसेज हैं, फिक्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑटोमोबाइल की, इनकी दुकानें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इसकी हैं। एक ऑन अ लाइट नोट 6 लाख मस्जिदें और 2.25 लाख स्कूल हैं, तो 3 गुना ज्यादा है मस्जिदें। इसका मतलब हमारी रूहानी जरूरियात कहीं ज्यादा है हमारी तालीमी जरूरियात से। तो अब एक एक दुकान है, उसका आपके पास जियो टैग है। अब आपको पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में कितनी रिटेल की दुकान है। अब कमिंग स्पेसिफिकली टू फिस्कल, फर्ज करें कोई कहते हैं कि हमने कोई शटर पे टैक्स लगाना है, कोई फिक्स टैक्स लगाना है 1,000 का, 5,000 का, 10,000 का। उसमें उस दुकान का एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी है, रेंज में है कि भाई 5 से कम एम्प्लॉय हैं, 5 से 10 हैं, 10 से ज्यादा हैं। तो टर्नओवर आपको कोई नहीं बताता पाकिस्तान में, कहीं भी नहीं बताता, लेकिन आपको साइज का पता चल जाता है। आपको फिक्स टैक्स इंपोज कर सकते हैं सिंप्लीफाइड। आप ये देख सकते हैं कि उसको टैक्स एफर्ट को प्लान कर सकते हैं कि कितनी दुकानें हैं, मेरा जो आरटीओ है वो कितनों को नोटिस भेजेगा, कितनी टैक्स एफर्ट करेगा, कितनों को जेल में डालेगा, वगैरह वगैरह। वो अपनी टैक्स एफर्ट को प्लान कर सकते हैं आप। तो एक बेसिस तो है आपके पास, उस पर आप पॉपुलेट कर लें। अच्छा, इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो आपके पास हर जिले में, हर तहसील में आपके पास ये डेटा है कि हाँ सिंगल स्टोरी मकान कितने हैं, डबल कितने हैं, 4 मंजिला बिल्डिंग कितनी है, जो 12 या 10 मंजिल से ऊपर हाई राइज में वो का आपको, आपके पास डेंसिटी है इसकी। हर जिले, हर तहसील का नंबर है। आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, यूआईपीटी की बात करें, आपके पास हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्रॉप्स हैं। आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें, तो एक ब्रॉड मैप जिस पे आप अपनी फिस्कल ब्रॉडनिंग के बारे में सोच सकते हैं, टैक्स एफर्ट को प्लान कर सकते हैं, वो मौजूद है। गैप्स उसमें होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियल डेटा ही है, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क तो है। अब अगर लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, इस्तेमाल करें, गैप्स भी पूरे करें, पीबीएस को डायरेक्ट करें कि तुम और डेटा लेके आओ। सर मेरा एक छोटा सा कमेंट है और एक छोटी सी बात पूछनी है। एक तो ये है कि यूजर कौंसल जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली पीबीएस किसी वक्त ऐसे रोल प्ले कर रहा होता है जैसे वही यूजर हैं। वो जब रिपोर्ट दे देते हैं और डेटा नहीं शेयर करते साल 2 साल,
ठीक है, तो बुनियादी तौर पे आपने हमें कंफ्यूज कर दिया है कि अब हम आपकी रिपोर्ट को वेरीफाई करने में लगे रहे हैं या के। तो सर एक तो आपके आने के बाद जो माइक्रो डेटा है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है जी सर, दूसरी बात ये कि यूजर काउंसिल में आप पाइड है, कायदे यूनिवर्सिटी है, एसडीपीआई होगा, लाहौर में लोग होंगे, कोई मतलब है उन इदारों की यूजर काउंसिल बननी है। ठीक है, बाज़ औक़ात में ये लगता है कि ओवर स्टेपिंग है क्योंकि वो आप प्रोड्यूसर्स हैं। सही। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे यूजर काउंसिल से क्लोज अलायंस अलायंस तो हो सकता है ताकि वो अपनी फीडबैक दें कि आपका डेटा, जैसे डॉक्टर नासिर ने आपसे कुछ वो चीजें पूछी, तो ये थोड़ी सी एक तो ये वाली बात है कि इसको हमें देखने की जरूरत है कि ठीक है आप उसमें फैसिलिटेटर हो सकते हैं, लेकिन काइंडली वो जो होता है ना, बाज़ औक़ात होता है कि हम इनसाइड प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना, हमारा काम नहीं। आपने डेटा दे दिया, लोगों को वो कैसे परसीव हो रहा है लोगों ने। दूसरी छोटी सी बात सर, इनटेंजिबल इकोनॉमी का साइज जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो आपको बढ़ रहा है। तो क्या पीबीएस इस सिलसिले में अपनी कैपेसिटी को नेचुरली, वो जो अतीक साहब से मैं एग्री करता हूं कि हर चीज वो पीबीएस ने नहीं करनी, हाँ। वो जाहिद अस्कर ने भी अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड करके तो आगे भेजना है ताकि, लेकिन इस पे भी एक बहुत सीरियस वाली डिबेट दुनिया पूरी में शुरू हो चुकी, मेजरिंग ट्रू प्रोग्रेस इन इनटेंजिबल इकोनॉमी। इस वक्त जैसे फॉर्मल, डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंट, ऐसे, तो इस सिलसिले में ये दोनों छोटी सी बातें हैं, अगर आप रिस्पॉन्ड कर दे ठीक है, नहीं तब ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये पहली बात जो आपने यूजर काउंसिल की ना, ये गैप है। मतलब आई शुड बी ऑनेस्ट इन कन्फेसिंग कि यूजर काउंसिल जो मेरा ख्याल है किसी जमाने में जफर साहब शायद बात बताएं 80s में या इवन 90s तक बहुत ही फाल थी। अच्छा, अब जो 2011 का जो एक्ट है उसके तहत यूजर काउंसिल हर सूबे में बननी है। वो अभी तक हम नहीं कर पाए। मैं आपसे शेयर करता हूं कि अब हम किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हम बनाना चाह रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, उस तरफ जाना चाह रहे हैं। पीबीएस उसका एक ऑर्गन है, लेकिन वो कुल नहीं है। उसमें कम से कम 4 सूबे शामिल हैं, 4 सूबों के ब्यूरोज। और आइडिया ये है कि आप, जब भी मैंने गुफ्तगू की कि आपका डेटा डिजिटली विजिबल हो, पॉलिसी के चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज को, फेलियर्स को वाजे भी कर रहा हो, ये सब दिखाने के लिए आपको जो कैपेबिलिटीज, जिन जिन डेटा पे आपको दस्तरस चाहिए, जो जो आपको इंसाइट्स, विजुअलाइजेशन देनी है, वो यूजर से ही आएंगी। वो यूजर सरकार भी है, प्राइवेट भी है, एकेडेमिया भी है। बदकिस्मती से 10 या 15 साल से डिसफंक्शनल है। तो अभी हम 2 चीजें करने लगे हैं। एक तो हम एक कैलेंडर बनाने की हम कोशिश शुरू करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा ये इरादा है कि 3 या 4 दिन के लिए जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, तो सूबे शामिल हैं और एकेडेमिया के लोग शामिल हैं, इनको हम किसी जगह 3-4 दिन के लिए कैद करेंगे और हम उनसे विश लिस्ट बनवाएंगे। फिर उस विश लिस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे कि किसको कौन सी इंफॉर्मेशन किस वक्त चाहिए, और उसके लिए क्या पीबीएस या प्रोविंशियल ब्यूरो से भी डेटा जमा कर रहे हैं। फिर विश लिस्ट जाहिर है सारी की सारी चीजें नहीं हो सकती, कहीं हम लॉक करेंगे और 3 से 10 साल तक का हम एक कैलेंडर जनरेट करेंगे, जिसमें वीकली हम क्या देंगे, मंथली क्या देंगे, क्वार्टरली क्या देंगे, एनुअली क्या देंगे, बायनवली क्या देंगे, डेसेनियल क्या देंगे, वो सब तय होगा। और किस लेवल तक वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, टेक्निकल चीजें भी उसमें, और उस पर हम लॉक करेंगे। और यही चीज यूजर काउंसिल इसमें एंगेज्ड होगी। तो यूजर काउंसिल को 4 सूबों में रीएक्टिवेट करना, टू बिगिन विद पंजाब और सिंध और केपी, ये तीनों सूबे हैं। बलूचिस्तान थोड़ा सा पीछे है, यहाँ प्रोविंशियल ब्यूरोज बेहतर काम कर रहे हैं, तो यहाँ इनको एक्टिवेट करके फिर इनको एंगेज करके हम एक एनएसएस का कैलेंडर बनाएंगे। और फिर उसमें ये नहीं होगा कि एलएफएस इस साल नहीं होगा या इस साल होगा, उस चीज को लॉक कर दिया जाएगा कि होना ही होना है। अच्छा, दूसरी एक और बात आपने की थी इनटेंजिबल वाली। अच्छा, अब ये यहाँ थोड़ी सी मैं पर्सनल बात हो जाएगी। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है अतीक साहब, मैं चाइना में था किसी वर्कशॉप में, और वहाँ गिग इकोनॉमी पे बात हो रही थी और सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2025। उसमें 3 तरीकों से कोई भी इकोनॉमी गिग को अगर कैप्चर करे तो वो SNA 2025 की मेजर कंप्लायंस कर लेती है। अभी पाकिस्तान सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 पे
नेशनल अकाउंट मुरतब कर रहा है। 25 में जाने के लिए एक चीज है कि आपकी गिग लेबर सप्लाई आ जाए, दराज में, फूड पैंडा में, टैक्सी में, रिटेल घर से हो रही है, फूड मेकिंग घर से हो रही है, नाजरा, किस डिसिप्लिन में कौन से लोग कितना टाइम दे रहे हैं और कितना पैसा मिल रहा है लेबर, ये आ जाए। दूसरी आ जाए गिग कंजम्पशन, वही लेबर सप्लाई। तो अब दराज का खाना हम सब खा रहे हैं, सॉरी फूड पैंडा का खाना सब खा रहे हैं, दराज से सारी लड़कियां कपड़े मंगा रही हैं, सबको पता है। तो ये अब हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है अभी ये। तो गिग कंजम्पशन आ गई। और तीसरी चीज जो अभी अतीक साहब ने इसमें इंक्लूड किया इस दफा रीबेसिंग में, गिग सोर्सिंग, कि फर्म्स अपनी इनपुट आउटपुट की सोर्सिंग में गिग को कितना लगा रहे हैं। ये 3 डायमेंशन जब आप कैप्चर कर लेते हैं किसी सोसाइटी की, तो यू बिकम बेटर प्लेस टू क्लेम के हमने गिग कैप्चर कर लिया है। लेबर सप्लाई, सप्लाई, डिमांड, सोर्सिंग। तो इस दफा एलएफएस में हमने जो 2.9% है मेजर जॉब्स लेबर सप्लाई गिग के जरिए हो रही है, और सेकेंडरी जॉब्स में 10% या 10.9% है वो गिग के जरिए हो रही है। उस सब्सिडरी जॉब उसमें और ड्राइव हो रही है औरतों से, 15% औरतें कर रही है। रिटेल बहुत ज्यादा हो रही है, फूड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन उसमें गैप्स हैं। उसमें फर्म्स ये नहीं बताती, ये मुश्किल होती है कि वो कितनी सोर्सिंग गिग से कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ सर्विस की रियल साइट के, उसमें पोल्ट्री का सर्वे था, तो बहुत पूछने की कोशिश की कि आप अपने चिक्स के लिए, वैक्सीन के लिए, कोई सर्विसेज के लिए किसी वेट की, डॉक्टर की, गिग को कितना यूज करते हैं, तो बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन उस इनिशियल स्टेप्स ले लिए उसमें। जी सर, बस 2 क्वेश्चन सर ऑनलाइन लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी आफाक साहब। जी, मैं माय नेम इज़ प्रोफेसर डॉक्टर आफाक काजी। आई एम इन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो लोग वहाँ नहीं हैं वो इसको अटेंड कर सकें, और काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, काफ़ी लर्निंग। मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि लेबर सर्वे के हिसाब से सॉरी, कि आजकल देखिए जो मॉडर्न स्लेवरी पे मैं काम कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल जो इतने भी बायर्स हैं, बायर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोशल कंप्लाइंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती हैं। और सोशल कंप्लाइंस की जब हम बात करते हैं तो लेबर की वो आ जाता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि लेबर सर्वे में जो कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ हैं, और उन पर हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान की वर्क फोर्स में तो बहुत बड़ा साइजेबल वर्क फोर्स है जो कि थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग पर है। और जब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर की हम बात करते हैं तो ये भी हमें पता है कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन प्रेशर, वहाँ पे जो सोशल कंप्लाइंस नहीं है, मिसाल तौर पर मिनिमम वेज नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लेबर सर्वे में करें तो उसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी लें, ताकि हम फिर ये जो सोशल कंप्लाइंस है और जो चीज़ें हैं इस पर भी काम कर सकें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो गिग इकनॉमी है उसका डेटा इस लेबर सर्वे में हमने इस वक्त कैप्चर किया है। बस यही मेरे 2 सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। शाहिद साहब आप भी सवाल दे दें ताकि एक ही दफ़ा फिर जवाब आ जाए। अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम। शाहिद, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा सवाल जी एकेडेमिया के हवाले से कि जब हम पढ़ाते हैं डेटा रिलेटेड कोर्सेज जैसे इकोनोमेट्रिक्स है या डेटा साइंस या जो भी हैं, तो हमारे पास जो भी बने बनाए डेटा सेट्स हों यूएस के या यूके के, तो उसको हम अप्लाई करते हैं आर में या पाइथन में या दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर से। अब जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा पे आते हैं तो वो इतना इजीली या अवेलेबल, पहले तो अवेलेबल होता था, अब पता नहीं अवेलेबल क्यों नहीं होता, जब भी क्लिक करो 404 का एरर आ जाता है। और दूसरा ये कि अगर अवेलेबल हो भी तो वो उतना फ्रेंडली यूजर वो नहीं होता जिस तरह डीएचएस का डेटा है, कि जैसे डीएचएस की रिपोर्ट अगर मैं उठा लूँ, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट्स या कुछ मैंने करना है तो वहाँ डू फाइल्स वगैरह, मतलब काफी चीजें उन्होंने हेल्पफुल दी होती है।
लेकिन पीएसएलएम जो है, अब जैसे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है पीएसएलएम का डेटा 2004 से कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कोई हेल्प टूल नहीं डाली जो कि पढ़ाने वालों के लिए आसानियां क्रिएट कर सके, या इवन अगर कुछ नहीं कर सकती तो जो रिपोर्ट्स उन्होंने बनाए हैं कम से कम उन रिपोर्ट्स के तो डू फाइल्स डाल दे, या जो ग्राफ उन्होंने बनाया है तो उसी रिपोर्ट में लास्ट में कम से कम उनकी कोडिंग तो डाल दे कि हमने ये फॉलो करके ये ग्राफ बनाया। हम बनाने की कोशिश कर रहे होते, स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं कि सर आपका तो ये रिपोर्ट ही नहीं कर रहा होता, मैच ही नहीं कर पा रहा। तो जी शाहिद साहब, आपका सवाल समझ आ गया। महमूद खालिद क्विकली कर लें, डॉक्टर साहब आप भी एक सवाल कर लें, फिर कंक्लूड करेंगे इसको। Thank you very much, Dr. Saab. It's always a pleasure to listen to you. My quick request actually would be कि सर अगर सप्लाई यूज टेबल के ऊपर भी अगर आप अपना कोई दे दें इंडिकेशन कि कब तक हमारे पास लेटेस्ट इनपुट आउटपुट टेबल्स वगैरह अवेलेबल हों। थैंक यू जी थैंक यू सर। Let's start with supply use table. I will request again Atit साहब. थैंक यू वेरी मच महमूद साहब, आपने मेरे ख्याल में काफ़ी पर्टिनेंट चीज़ उठाई है। सप्लाई यूज टेबल ये वो एरिया था जो पीबीएस के एंड पे काफ़ी अरसे से डेफिशिएंट भी रहे हैं और हमने इस साइड पे काम भी नहीं किया था। 90s में हम सप्लाई यूज टेबल भी बनाते थे, इनपुट आउटपुट टेबल भी बना रहे थे और इवन के इंस्टीट्यूशन सेक्टर अकाउंट्स भी बन रहे थे, लेकिन फिर बाद में एक बड़ा लंबा गैप रहा। रिसेंटली हमने फिर 2014-15 में एक सप्लाई यूज टेबल बनाई थी, जिसपे फिर पाइड ने इनपुट आउटपुट टेबल भी डेवलप की उसकी। अब हमने 15-16 की, चूंकि हमारी रीबेसिंग हुई है और आप जानते हैं कि सप्लाई यूज टेबल में आपको बहुत डिटेल डेटा चाहिए होता है तमाम सेक्टर्स का, और चूंकि आपने प्रोडक्ट वाइज सप्लाई साइड भी बनानी है और उसकी जो यूज साइड है उसको भी कंपाइल करना है, तो 15-16 के डेटा के ऊपर हमने एडीबी के साथ कोलेबोरेशन पे सप्लाई यूज टेबल डेवलप कर ली है। दैट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस। इवन हमने इनपुट आउटपुट टेबल भी डेवलप कर दी है, वो भी फाइनल स्टेजेस पे है। इट इज़ ऑन द डेस्क ऑफ द चीफ स्टैटिस्टिशियन फॉर अप्रूवल। वो जैसे ही हम उससे गो थ्रू करेंगे, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर सप्लाई यूज टेबल एंड इनपुट आउटपुट टेबल फॉर 2015-16 विल बी अवेलेबल। जो नेक्स्ट रीबेसिंग है हम 25-26 करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि 25-26 की सप्लाई यूज टेबल भी रीबेसिंग के साथ ही कंपाइल कर ली जाए। तो इनिशियली 2015-16 की सप्लाई यूज टेबल बाय एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। चला इसी कैलेंडर ईयर में सप्लाई यूज टेबल बेस्ड ऑन 15-16 आ जाएगा। और ये एक और चीज, रीबेसिंग इज इन द प्रोसेस। जीडीपी को 15-16 से 25-26 पे मूव कर रहे हैं और आई होप कि 27 के बिगिनिंग में आपके पास जीडीपी 25-26 की बेस पर होगी। उसके लिए जो भी नेशनल लेवल के सर्वेज हैं, स्टडीज और छोटे सर्वेज वो जारी हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ, जो बात की थी एक हमारे प्रोफेसर हैं आईबीएम से, शायद उन्होंने बॉन्डेड लेबर पे या कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे बात की। अब ये एक चीज का समझना जरूरी है कि लेबर फोर्स सर्वे हाउस होल्ड सर्वे, इस्टेब्लिशमेंट सर्वे नहीं है। ये हम कारोबारों से या फैक्ट्रियों से या मालकान से नहीं कर रहे, घरों से पूछ रहे हैं कि आपकी लेबर सिचुएशन क्या है, उसमें जो जो वेरिएबल्स हैं हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का डेटा लेके आए और उसमें देखें कि किस सेक्टर में कितने लेबर्स हैं, कितनी वेज हैं, कैसी वर्किंग कंडीशन है, आउटसोर्स तो नहीं की हुई है कोई लेबर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये उसमें आएगा। इस वक्त मौजूद नहीं है, किया जा सकता है, हो सब कुछ सकता है, लेकिन फिर वही है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। तो ये रिस्पॉन्स ये है कि बॉन्डेड का तो बहरहाल डेटा नहीं है, वो एक बिल्कुल ही दूसरा डायमेंशन है इकोनॉमी का। लेकिन जो हम रीबेसिंग में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का पूछ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आई होप बाय द एंड ऑफ 2026। रियल जो एस्टेब्लिशमेंट का डेटा सीएमआई और एसएचएमआई से आता है, सेंसस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्मॉल हाउस होल्ड, वो हमारे 26 में हमारे प्लान में हम कर रहे हैं। जो दूसरे हमारे वो भी एकेडमिया से हैं, उन्होंने डू फाइल्स के बारे में कहा, वेल नोटेड, वेल टेकन, ये हमारा गैप है, इसको हम पूरा कर देंगे। तो लेट मी टॉक टू माय सेक्शन हेड्स, पीएसएलएम, हाइस, एलएफएस, पीडीएस के उनकी डू फाइल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से करके, और फिर हम ये करेंगे कि जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं उनके साथ वो एनेक्चर में वो डू फाइल्स भी हों, ताकि ये एकेडमिक्स में इस्तेमाल हों। जब वो रेप्लिकेट कर लेंगे बच्चे और प्रोफेसर्स, तो ज़ाहिर है वो कंफर्टेबल होंगे कि अपनी नई चीज़ को करें। तो ये आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक है और इसको हम एक गैप है, इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बस एक चैट पे सवाल आया है दो लोगों की तरफ से कि एलएफएस और हाईएस जो हैं वो कब आ रहे हैं।
LFS तो आ गया LFS आ गया है। और माइक्रो डेटा भी आ जाएगा बेटा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हफ्ता डेढ़ में माइक्रो डेटा भी वेबसाइट पे होगा। हाइस हम मोस्ट लाइकली दिसंबर के पहले हफ्ते में आपके सामने होगा इंशाल्लाह। जी सर, with this, thank you so much. It was a very interesting session we had. आपने देखा डॉक्टर साहब ने बताया, एम्फसाइज किया कि हमें अपने आप को, जैसे मामलात चेंज हो रहे हैं तो हमें भी अपने टूल्स को चेंज करना होगा, आर की तरफ जाना होगा, डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाना होगा। और बड़ा मज़े से डॉक्टर साहब ने बताया कि हाउ वी कुड यूज़ वेरिएबल्स टू फिल पॉलिसी गैप्स इन पाकिस्तान। अर्बन पाकिस्तान की बात हुई, इनफॉर्मल सेक्टर की हुई, और मामलात की हुई। तो सर हम आपसे बेनिफिट लेते रहेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी। और हमारे आई होप आप जितना प्यार करते हैं बाइट के साथ, तो लेट मी अश्योर यू और कि आप जब भी PBS को एक्सेस करेंगे तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा PBS से। तो थैंक यू सर, विद दिस थैंक यू सो मच, या